विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया और विदेश में रह रहे भारतीय अप्रवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों के कल्याण से जुड़े हाल के घटनाक्रमों पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार विदेशों में काम करने वाले लोगों के रोजगार और उच्च शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों की चिंताओं से पूरी तरह से अवगत है। उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय नागरिकों को उनके कार्यस्थल संबंधी देश में भेजने पर ध्यान दे रही है और इस संबंध में खाड़ी देशों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कोविड महामारी की वजह से विदेशों में भारत वापस लौटे भारतीय छात्रों और श्रमिकों को उनके गंतव्य देशों में वापस भेजने, साथ ही उनकी शिक्षा और रोजगार की स्थिति को सामान्य बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संसद के दोनों सदनों में इस बारे में आश्वासन दिया है। The government is fully cognizant of the employment concerns that our people abroad have in the context of the pandemic, especially in the Gulf. There has been tremendous economic and social disruption that has impacted them. We have softened it somewhat, but the real challenges are there to be addressed. Let me assure the House that we take this as a priority. Both my MOS and myself, and indeed our ambassadors and senior officials, spend time and efforts to go into these problems in the greatest of details. We have been in touch with the most community organizations and get a regular feedback on both the health situation and economic recovery. विदेश मंत्री ने कहा कि विदेशों से लौटे भारतीयों के रोजगार का मुद्दा उन सभी देशों की सरकारों के साथ उठाया जा रहा है जहां से वे लौटे हैं। साथ ही ये प्रयास भी किए जा रहे हैं कि विदेशों में पढ़ रहे छात्रों का कोरोना महामारी की वजह से साल बर्बाद नहीं हो। इसके लिए भारतीय दूतावास संबंधित सरकारों के साथ संपर्क बनाए हुए है। The Modi government has been deeply committed to the welfare and protection of Indians abroad. And equally, we value and nurture our relationship with PIOs. The COVID pandemic was a test of our commitment on this matter, as on so many others. And whether it was the problems of the worker or the student, the professional or the tourist, we have risen to the occasion. A huge collective effort by nameless and faceless individuals from our embassies and other organizations in India and abroad made that possible. विदेश मंत्री ने कोरोना संकट के समय विदेशों में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी के प्रयासों की जानकारी भी दी। Kerala received the maximum returnees, followed by Delhi, Maharashtra and Tamil Nadu. UAE was the country from where the maximum number of stranded Indians returned, followed by Saudi Arabia, USA and Qatar. 39% of the returnees were workers, 39% professionals, 6% students, about 8% visitors and 4.7 standard tourists. सरकार के इन प्रयासों की सभी दलों ने प्रशंसा भी की। About the students, they have lost 1 year, and parents had paid the fee, but nobody can be blamed for that situation. As normalcy returns, will there be a special cell monitoring the students' case so that they can go back to the universities and complete their education? I join my colleagues in complimenting Honorable Minister, sir, for making it very smooth. However, I think, and he is aware, that there were certain countries from where there were issues which was difficult to handle. But particularly, I am aware of Bihari students, medical students in Russia. I mean, a pocket. Sir, first of all, I extend my appreciations and congratulations to the Minister who has helped to all our requests during the pandemic to help the NRIs who are abroad. And it should be mentioned here, sir, that many were evacuated even at that crucial situation. विदेश मंत्री ने सदन को इस बारे में भी सूचित किया कि जो लोग कामकाज के लिए अब विदेश वापस नहीं लौटना चाहते, सरकार ने उन लोगों के कौशल से जुड़ी जानकारियां भी जुटाई हैं। राज्य सरकारें उन आंकड़ों का इस्तेमाल कर सकती हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज पुरुलिया चुनावी जनसभाएं की। ममता बनर्जी ने कहा कि कोई भी साजिश उन्हें राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने से नहीं रोक सकती और बीजेपी के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा। ममता बनर्जी ने यह दावा किया कि जितना काम टीएमसी की सरकार ने किया है, कोई और सरकार उतना नहीं कर पाई।
पश्चिम बंगाल में कई विधानसभा सीटों पर सांसदों को चुनाव लड़ने के लिए उतारने पर ममता बनर्जी ने बीजेपी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इन नेताओं ने राज्य के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नामांकन पत्र खारिज करने की मांग की। शुभेंदु अधिकारी ने यह दावा किया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नामांकन पत्र में उनके खिलाफ 6 आपराधिक मामले दर्ज होने का खुलासा नहीं किया। चुनाव आयोग को दी गई शिकायत में अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी ने असम में उनके खिलाफ दर्ज 5 मामलों और पश्चिम बंगाल में सीबीआई द्वारा दर्ज एक अन्य मामले के बारे में सूचना छिपाई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की करीबी विधायक देबाश्री रॉय ने आज तृणमूल कांग्रेस विधायक से इस्तीफा दे दिया। दक्षिण 24 परगना के राय दीघी सीट से विधायक देबाश्री रॉय ने पार्टी अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे पहले पार्टी के कई बड़े नेता तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली में तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि तृणमूल सरकार के 10 सालों में पश्चिम बंगाल विकास की गति में बहुत पिछड़ गया है। वहीं बांकुरा में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ममता सरकार के आने के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा मिला है। बंगाल में 10 साल से तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने बंगाल को पाताल तक नीचे ले जाने का काम किया है। हर चीज में भ्रष्टाचार, हर चीज में टोलबाजी, राजनीतिक हिंसा, घुसपैठ, तुष्टीकरण, हिंदुओं के और आदिवासियों के त्योहार मनाने के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़े, इस प्रकार की स्थिति और मारपीट और गुंडागर्दी ने पूरे बंगाल के विकास को तहस नहस कर रख दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने असम में कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया। जुमगुरीहाट सौतिया में जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने विकास का वादा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश को बाढ़ मुक्त और विकास युक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश बीजेपी की सरकार ने पिछले 5 साल में विकास कार्यों को रफ्तार दी। ऐसे में पार्टी को जनता का आशीर्वाद भी मिल रहा है। 60 साल का पलड़ा हल्का है और 60 महीने का पलड़ा भारी है। ये भोगीबील ब्रिज, ये 6,000 करोड़ रुपए का, ये लटका था, अटका था, भटका था, खटका था। मोदी जी के आने से और सर्बानंद सोनोवाल जी के आने से इसको रास्ता मिला। और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का काम जारी है। प्रदेश की राजनीति के कई दिग्गजों ने आज अपना पर्चा दाखिल किया। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने आज सेलम जिले के अपने पैतृक निवास क्षेत्र ईडापड्डी से नामांकन दाखिल किया। ईडापड्डी विधानसभा क्षेत्र को सत्तारूढ़ AIADMK का गढ़ माना जाता है। पलानीस्वामी इस सीट से 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने यहां से 1989, 1991, 2011 और 2016 में जीत दर्ज की। वहीं डीएमके प्रमुख MK स्टालिन ने कोलाथुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। स्टालिन 2011 से यहां से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। स्टालिन यहां से तीसरे कार्यकाल के लिए मैदान में हैं और पहली बार चुनाव मैदान में उतरने जा रहे मक्कल निधि मय्यम के संस्थापक कमल हासन ने भी आज कोयंबटूर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। राज्य में 19 मार्च तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों के लिए 6 अप्रैल को एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होंगे। AIADMK 179 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि सहयोगी दलों के 12 उम्मीदवार भी AIADMK के चुनावी निशान पर मैदान में हैं। और इधर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज कुन्नूर जिले के धर्मधाम विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। पिनराई विजयन सुबह 11 बजे कुन्नूर में कलेक्टर के कार्यालय में नामांकन दाखिल करने पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 साल में केरल में विकास और कल्याणकारी परियोजनाओं को क्रियान्वित किया गया। इसे आगे और मजबूत किए जाने की जरूरत है। उन्होंने एलडीएफ के सत्ता में वापसी का भरोसा जताया। विजयन दूसरी बार धर्मधाम से चुनाव लड़ रहे हैं। केरल में 6 अप्रैल को मतदान होगा। और कुछ और खबरें। बटला हाउस मुठभेड़ मामले में दोषी आरिस खान को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आज फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए फैसला सुनाया। इससे पहले कोर्ट ने 8 मार्च को सुनवाई के दौरान इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिस खान को दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या और अन्य अपराधों के लिए दोषी करार दिया था। दक्षिण दिल्ली के जामिया नगर इलाके में 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के निरीक्षक मोहन चंद शर्मा की गोली लगने के बाद से मौत हुई थी। इस मामले में जुलाई 2013 में अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी शहजाद अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आरिस खान घटनास्थल से भाग निकला था और उसे भगोड़ा घोषित किया। आरिस खान को 14 फरवरी 2018 को पकड़ा गया। देश में बीते महीने थोक महंगाई 4% से ऊपर दर्ज की गई और इस साल जनवरी में यह आंकड़ा 2.03% पर था। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 4.17% पर रही, जबकि पिछले साल फरवरी में थोक महंगाई दर 2.26% दर्ज की गई। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 3 करोड़ के पार पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 3 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का डोज दिया जा चुका है। इसमें 82,92,000 वरिष्ठ नागरिक और 14,64,000 कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग शामिल हैं। वहीं 73,55,000 स्वास्थ्य कर्मियों को पहली और 43,05,000 स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। साथ ही 73,40,423 फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहला डोज और 11,50,000 से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को दूसरा डोज दिया जा चुका है। और इसी बीच देश में कोविड-19 के कुल सक्रिय मामले 2,19,000 तक पहुंच गए हैं, जो कि कुल संक्रमित मामलों का 1.93% है। देश के 8 राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा में दैनिक नए मामलों में बढ़ोतरी जारी है। हालांकि केरल में नए मामलों में गिरावट देखी गई है। केवल महाराष्ट्र में देश के कुल सक्रिय मामलों के 58% से अधिक मामले हैं। और फिलहाल खबरों में इतना ही। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है। ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और
किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।